Hello my dear students, I hope you all are fine. Today in this video we are going to continue our chapter which is components of food, and this chapter is in biology. Till now we have completed two important nutrients, that is carbohydrate and fats. Today it's time for the third nutrient and its name is protein. Protein is also known as bodybuilding food. Now why? That we are going to understand. See, basically if you eat protein rich food, then what is happening in your body, that your body is made up of very tiniest particle, its name is cells. Okay, and from the cells only various kinds of organs are also made up. So if you consume the protein rich food, then your body will start growing because the cells is made up of protein. आपके जो बॉडी का छोटा छोटा पार्टिकल है जिसको हम सेल बोलते हैं, ये सेल है वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं. इसलिए अगर आप प्रोटीन रिच फूड खाते हो तो बॉडी में सेल्स बढ़ेंगे. इफ़ सेल्स बढ़ेंगे तो आपका मेंटली एज वेल एज फिजिकल ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से होगा. Second thing is that suppose if you have any damage in your bodies inside the cell, internally or externally, so at that time this protein will helps you to repair that damaged body parts. Okay, so that's why the protein is important, and due to these two reasons only it is named as body building food. Now let's understand what are the sources of protein. So here are the sources of protein. Okay, all kinds of dairy products, that are milk, then milk, ghee, cheese, paneer, curd, ice cream. These are very good source of protein. Second thing is chicken, egg, meat, fish, all kinds of animal products are very good source of protein. Okay, and you have seen this too in the fat rich food also. आपने ये दोनों sources को fat rich food में भी देखा था. Okay, so these two are the common between fats and protein rich foods. For the vegetarian, they are having the option of dairy products and the pulses and beans. Okay, pulses means sari dal, moong dal, chana dal, masoor dal, tur dal, etc. So these are the pulses, as well as beans means moong, chana, matar, rajma, cholai, etc. So these are the examples of beans. So beans and pulses are very good source of protein. So vegetarians के लिए protein के लिए ये option है, as well as dairy product का option है. स्प्राउटेड सीड्स के अंदर पल्सेस एंड बीन्स से भी ज़्यादा प्रोटीन है वो होता है, बिकॉज वो जर्मिनेटेड फॉर्म में होते हैं. ओके, सो इसलिए स्प्राउटेड मूंग या स्प्राउटेड चना खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से होता है, वेदर इट इज़ फिजिकल और मेंटल. सो इसलिए यू मस्ट हैव टू ईट प्रोटीन रिच फूड, बिकॉज आप लोग अभी ग्रोइंग एज में हो. You are currently in the 6th standard. Okay, you are at your student's life. Okay, so your body is continuously growing mentally and physically. So currently if you will going to consume protein rich food instead of fat rich food and carbohydrate rich food, it would be much healthier for you. Okay, currently आपकी जो situation है आप घर पे ही हो. Okay, so इस टाइम पे अगर आप प्रोटीन रिच फूड खाते हो तो इट वुड बी मच बेनिफिशियल फॉर यू. ओके, सो इसलिए अभी करंट सिचुएशन में आपको फैट रिच फूड कम खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन रिच फूड ज़्यादा खाना चाहिए. ऐसा मेरा पर्सनल सजेशन है, क्योंकि अभी आपका इतना ज़्यादा खेलना कूदना नहीं होता है. मोस्टली आप बैठ के या सोते हुए या फिर घर के अंदर रेस्ट करते होंगे और आपकी बाकी की सारी रूटीन है वो फॉलो अप करते होंगे. सो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी अभी बहुत कम है, इसलिए आपको फैट रिच फूड कम खाना चाहिए. ओके, एंड हो सके तो थोड़ा कार्बोहाइड्रेट रिच फूड भी थोड़ा कम ही खाना चाहिए, जैसे कि शुगर है, सिंपल शुगर वाले जो फूड्स है जैसे कि चॉकलेट्स है, शुगर्स है,
ओके, सो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी बहुत कम खानी चाहिए. ओके, अदरवाइज यू विल बिकम फैट. So instead of that, you can switch to the protein rich food, okay, especially dairy products, pulses, sprouted seeds and all. So it would be much beneficial for you. Moving to the next is, see, these are the other sources of food which is rich in protein. In it they have mentioned oil seeds also. Oil seeds means the seed that will give you oil by crushing it, like mustard oil, then olive oil, then almond, etc. So these are very good source of protein, so you should eat it. All kinds of dry fruits are also good source of protein. Okay, but doesn't mean कि आप उसको मुट्ठी भर के खाना खाए, because उसके अंदर फैट्स भी अवेलेबल है, so careful. Then eggs are also there. Now next one is that how can we identify that whether the food is rich in protein or not. So for that we are going to perform the test. So in that, what you have to do, firstly, whatever the food you want to test it, you have to make it a paste of it. Paste मतलब या उसको liquid form में रखना है. ओके, लाइक सपोज मुझे मिल्क का करना है, तो मिल्क तो इट सेल्फ लिक्विड है, सो नो प्रॉब्लम. ओके, अगर मुझे कोई भी दाल का टेस्टिंग करना है, तो मूंग दाल या चना दाल है, उसका जो पाउडर है उसको पानी में मिक्स करके डाइल्यूट कर लूँगी और उसकी जो सॉल्यूशन है ऐसा बना देंगे. ओके, सो लाइक दिस वे सबको सॉल्यूशन फॉर्म में रखने की वजह से हमें रिज़ल्ट है वो बहुत इंस्टेंटली एंड एक्यूरेटली मिलेगा. इसलिए second step that you have to follow is to mix copper sulfate and caustic soda solution. सी बेटा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एक केमिकल आता है जिसका कलर बहुत ब्यूटीफुल ब्लू कलर का होता है. आई विल शो यू इन द डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो. कॉस्टिक सोडा पानी जैसा ही दिखता है. तो ये दोनों केमिकल्स है, उसको डाइल्यूट फॉर्म के अंदर लेना है. डाइल्यूट फॉर्म का मतलब होता है जिसमें उसको पानी के साथ मिक्स करते हैं. 100% प्योर नहीं होता है, उसको डाइल्यूट फॉर्म बोलते हैं. जैसे कि डाइल्यूट लेमन जूस, इसका मतलब है कि 1 ग्लास पानी में या 2 या 3 चम्मच अगर आपने नींबू का रस डाल दिया है, तो इट इज़ डाइल्यूटेड लाइम जूस. ठीक है. सो डाइल्यूट का मतलब है कोई भी चीज़ को पानी में डिज़ोल्व करके फिर यूज़ करना, ताकि वो 100% प्योर ना हो, बहुत ज़्यादा तेज़ ना रहे, इसलिए. सो इसको बोलते हैं डाइल्यूटेड. सो आपको दोनों ही डाइल्यूटेड कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा लेना है. अब आपको जो भी फूड का टेस्टिंग करना है, उस फूड में 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा डालना है एंड 5 ड्रॉप्स आपको कॉपर सल्फेट डालना है. इफ़ उसका कलर है वो ब्यूटीफुल पर्पल कलर आ जाए, ओके, तो यस, आपके फूड के अंदर प्रोटीन है वो प्रेजेंट है. ओके, सो आई एम गोइंग टू शो यू द डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो. प्लीज़ सी इट केयरफुली. सी दिस इज़ कॉस्टिक सोडा. ओके, इसके अंदर हम लोग पानी ऐड कर देंगे ताकि वो डाइल्यूट हो जाए. ओके, बहुत तेज़ ना रहे. ड्रॉपर है, ड्रॉपर की मदद से उस सॉल्यूशन के अंदर हम लोग बहुत सारा पानी डाल रहे हैं. ठीक है, और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे तो डाइल्यूटेड कॉस्टिक सोडा है वो रेडी हो गया. अब हम लोग लेंगे कॉपर सल्फेट. इसके अंदर कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का पाउडर होगा, जिसमें हम लोग 10 ml पानी को ऐड करेंगे, जिसकी मदद से वो ब्यूटीफुल ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा. ओके, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ये भी लिक्विड फॉर्म में, सॉल्यूशन फॉर्म में अवेलेबल है. अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें जो जो चीज़ों को टेस्ट करना है उसको छोटी सी ट्यूब के अंदर ले लेंगे. सबसे पहले हम मिल्क का टेस्टिंग करेंगे कि मिल्क के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं. तो हम सम सॉर्ट ऑफ मिल्क है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लेंगे. अब उसमें हम लोग 10 ड्रॉप्स कॉस्टिक सोडा है वो डालते जाएंगे. उसके बाद 5 ड्रॉप्स या 4 ड्रॉप्स हम कॉपर, सी बेटा कितना ब्यूटीफुल ब्लू कलर है इसका. सो 4 to 5 ड्रॉप्स डालेंगे. अब इसको मिक्स करेंगे. मिक्स करने की वजह से आपको देखो लाइट पर्पल कलर दिख रहा है. लाइट इसलिए है बिकॉज ऑफ मिल्क.
मिल्क वाइट कलर होता है इसलिए पर्पल इतना डार्क नहीं दिखेगा, लेकिन येस मीन्स पर्पल कलर चेंज हो गया है, मीन्स येस द प्रोटीन इज प्रेजेंट। अब हम ये छोटी सी चम्मच बना रहे हैं ताकि हम सॉल्ट को ले सके। ओके, हमारी चम्मच है वो तैयार हो गई। ये सॉल्ट है, सॉल्ट को टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा वाटर डाल देंगे ताकि वो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल हो जाए अच्छे से, सो दैट वी कैन परफॉर्म द टेस्ट वेरी एक्यूरेटली। So it is now completely diluted. Now we will going to add same thing, 10 drops of sodium caustic soda, sodium hydroxide भी उसे बोलते हैं, and 4 to 5 drops of copper sulfate. Now we are going to shake it properly and observe whether it is changing the color into purple or not. So you see over here that वो blue color का ही रहा, purple नहीं था। अब हम लोग egg white से टेस्टिंग करेंगे। सो एग वाइट हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लिया। अगेन विल रिपीट 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड 4 to 5 ड्रॉप्स ऑफ copper sulfate, and we are going to shake it very well. You see very beautiful dark purple color comes. It proves that yes, egg white is also rich in protein. ओके, सो मिल्क एंड एग के अंदर प्रोटीन है इसलिए उसके पर्पल कलर हो गए। सॉल्ट में कोई प्रोटीन नहीं है इसलिए उसका कलर ब्लू का ब्लू ही रहा। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे। I hope you understand how to test the protein, also which food are quite rich in protein. Next video we are going to cover the fourth nutrient and its name is vitamin. So be ready for that. Till then, keep smiling, eat healthy and have a nice day. Bye.